Hello students, welcome back. We are on a very important topic and this is going to be another interesting and amazing session. So what we have been talking last time, we have told you what are colloids, and I said that there are two phases, dispersed phase and dispersion medium, heterogeneous system, size of the particles of the dispersed phase 1 to 1000 nanometers, and we said that colloids are everywhere around us. The food, lot of food which you are eating, drinking, milk, butter, the creams which you are applying, antiseptic creams, the solutions which you are putting in your eyes, students, the syrups which you are using, the fog, the smoke, and the clouds. These were all examples of student colloids. And even I said about blood. Blood is also a colloid, and we defined the various types of colloid, students. Just to revise for you students, that you know that we have defined and given a classification of the colloids based on the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. What you were told basically, that there is a dispersed phase and dispersion medium, students. Two things every time we talk of dispersion medium, and I said the questions are going to be like this. For example, the question was paint. They say paint 2-3 years back. What type of colloid is this? What type of colloid? And what is the dispersed phase and dispersion medium? Identify dispersed phase and dispersion medium. This is a type of question which is important. We try to discuss question answers in our lecture, students, so that you know what type of questions will be there in the coming board papers. Now, what is your answer for this? What is your answer for this, student? First, you have to tell what type of colloid is this, then the dispersed phase and dispersion medium. What is your answer? Sir, it is a solid sol. No, just a second. It is a sol. Yes, sir, it is a sol. Paint is a sol. Shivangi, you are intelligent. Never hurry up the answer. Take Yes, your sir. time. You will get time in the exam. Don't worry. It's not that you are given paper and just write whatever comes in your mind. No. I told you with me that your mind needs thinking, time. Take your time. Relax. Overconfidence can defeat us in the paper. Yes, sir. Don't go for that. You relax and take your time. After you have given thought the answer, think again 2 times. Then you give me the answer. Now you tell me what you have to say. Sir, this is a sol. Okay. First, your answer is sol. Okay. Then what you are saying? Half mark. And sir, the dispersed phase in this is solid and dispersion medium is liquid. So this sol means what? You know, how do I remember the things? Understanding. Solid in liquid, you are saying? Yes, sir. Solid in liquid. So liquid, this L is liquid. And SO is solid. This is going to become dispersion medium. Yes, sir. Dispersion medium. And SO, I'm looking like solid. You know, some common sense is required in everything. This is only one example I'm giving. Every example I will need some common sense also. You will see that in paint you have different colors: yellow, green, red. What are the paints colored? What color? They are dyes. You know, dyes.
Yes, red sir. ink, blue ink. What it means? Those dyes are solids. They are dissolved in some solvent. So some dispersion medium is there and some solid is there. So we must understand the common sense behind our answers, right? Yes, sir. Then he talked about in the paper they have given in there was a, this is my question one in 2 years back they have asked butter. What type of colloid is butter, students? Sir, butter is an emulsion. Why you are in hurry? I said the target will be this dispersed phase and dispersion medium. What you are having in butter? Butter. Sir, in the book in the book table, butter is written in the part of emulsion in Butter. NCRT. Yes, sir. Butter is written. This is the NCRT table which I have given you. Sir, can I just send you? Oh, don't no no you not need to send me liquid solid milk we said is emulsion. Actually, what do you have in butter? Solid, fat, and liquid. There is a liquid and solid fat. Solid fat. So this is our dispersion medium. This is our dispersed phase. This is our dispersed phase, and this is our dispersion medium. Somewhere you need. Let me tell you. Sometimes some mistakes are there in certain parts of the Okay. book. We have to be careful. So, sir, If should I they correct say this? Should I correct no, no, this? I said we have to confirm it through some other Okay. method. Okay, sir. Sometimes some confusion could be there because you see some table which we are getting may have error. Okay, sir. We are getting table from some book, supposing somewhere, and sometimes there is a misprinting. Even some answers could be wrong somewhere. Not all. I mean, few mistakes could be there. But once we identify the dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase is liquid and dispersion medium is what? Solid. Solid, solid. So when liquid in solid is what we called as liquid in solid. Gel. So I mean Liquid and solid is I'm gel. coming to the basic thing. When Okay. I said liquid in solid is there. When the liquid is in solid like jelly type, that we call as gel. Similarly, what I'm trying to tell you that question, 1 mark question is given. Okay. 1 mark question has been given repeatedly on the type of the colloids. And some amount of common sense will have to be used because sometimes the answers look very close to each other. But the most important thing is these two. This will the basic of us. We have to identify this. Basically, he will ask what is the dispersed phase, dispersion medium. And some names we have already defined here. I gave you the names. That also we have taken from some table. But there is nothing, no mistake here, I think, as far as we know. What we have defined. This is our gel, liquid in solid. Liquid in solid is gel. So this is liquid in solid. Liquid in solid. So anyway, these are some of the types which we discussed. Like smoke was given. Smoke. So smoke is very common sense, the carbon Smoke particle, dust is, particles in yes, air. sir. It is aerosol. So when gas, solid in gas, liquid in gas, what you've been calling aerosol, aerosol. Yes, sir. Some names look like easy because we have to see how they are formed. And it's not all the names are not that because they have given some names. Sometimes these names may not match the things they look like. Okay.
This classification we already did, student. Now I'm coming to the most important part. One question is coming every year based on this. That classification of colloid is important question for exam. But how do we classify? One, I said the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. So every time I'm saying the basic, in a solution you have a solvent and solute, Yes, and in a sir. colloid you have dispersed phase and dispersion medium. That is the main difference. Yes, sir. Okay. So dispersed phase is there. You are saying again and again. I'm talking of two things. Dispersed phase, and you are saying, sir, dispersion medium is there. This is the definition of the colloid which was found. That means there are molecules here, there are molecules here. So there will be some interaction between dispersed phase and dispersion medium. Yes or no? There is an interaction. Can we classify on the basis of interactions? What type of Yes, sir. interaction I'm talking about? The two most important interactions are solvent loving or solvent hating. Hating. I mean, the particles can be solvent loving or the particles can be solvent hating. So here they are defined two types of the colloids. They are usually asked in the paper. One I am saying lyophilic, and other I am saying lyophobic, students. The meaning is clear. Phil means love. So lyophilic is that which is loving the medium. That means it has affinity. It has love for dispersion medium. Dispersion medium. When you talked of electrophiles, nucleophiles, PHIL, file means what? English, loving, and phobic, phobia, fear. Hating. So Hating. they are having less affinity for the dispersed phase. Dispersed phase has less affinity for the dispersion medium, or what we are saying, they are the liquid is, in such cases, liquid is our dispersion medium. So they are not having affinity for the dispersion medium, or what they are saying, they are solvent or dispersion medium hating. Dispersion medium hating. That means there is phobic group, as we talked in organic chemistry also, hydrophobic and hydrophilic. Yes, If sir. water is the medium, what will we call it? Hydrophilic and hydrophobic. Hydrophilic groups. You already know in organic chemistry. And hydrophobic group, students. Now, interesting thing, if I take starch, if I take starch, you take proteins, you have gum, glue, you have certain rubber type of substances. They are going to form lyophilic type of salts. There water is there and some polar groups are there. Naturally, we are expecting such groups to have affinity for the water. Water is what type of group? This is negative, this is positive. Polar group. Water is having high dielectric constant, has a dipole moment, students, 1.8 dBi. So we already seen that in chemical bonding topic. So we are expecting, and we know these are the examples of lyophilic colloids. This is also known as intrinsic colloid. Important point, because this question was given. Okay. Intrinsic colloid. Intrinsic. They said what are intrinsic colloid? Students knew about lyophilic and lyophobic. They were not so sure about intrinsic colloid. This was given in the exam. Sometimes what is the big headings may not be given.
and what is ending the line in a particular paragraph. So that becomes a question in the paper. So intrinsic, why they are called intrinsic? They are easy to form because they have strong tendency for what? For the dispersion medium. So easily you will shake them, stir them, mix the two hot solution, they will form immediately. Star solution, you make it easily. You can make easily. But lyophobic salts are not easy to prepare. There are special methods which will be discussed in this course for the preparation of lyophobic salts. These are called intrinsic colloid, student. Important point. I'm putting red pen star. Important. Question already asked. And what are intrinsic colloids? The here story we know, students, that they are not going to like the solvent. So they will be difficult to prepare, one thing. Second, even if they are formed, students, what will happen? They will not be They are not stable. They are not stable. That means they don't like dispersion medium. And there something is not stable, then where it goes? It will coagulate, precipitate. So, sir, colloid won't be formed in this case? No, they will be formed. I'm not saying that, but their stability is very less. There will be Okay. special methods required for their preparation. And what we do is stabilizing agents. Stabilizing agent, students. Yes, sir, in our everyday life we use a lot of stabilizing agents. आप कुछ अचार भी बनाते हो तो आपको पता खराब होने वाला, बहुत सारी चीजें आप बनाते हो, उनमें Yes, क्या sir. है, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डाले गए हैं. Stabilizing agents. ये सब केमिकल कंपाउंड्स ही हैं और कुछ नहीं है. अब जो सॉसेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या है, यू विल सी दे आर एडिंग समथिंग. If they don't add, then it will get spoiled. So, And just like preservatives. I mean, we will define everything, but just so many things we are. So the Okay. story is that we're trying to understand the basics of everything. When you are taking classes with me, my purpose is to basically decode everything. So many things are quite similar, but what is the need of that we have to see. This is not stable, so I will have to put something to stable. In milk also there is a stabilizing agent, you know. Yes, sir. Milk we are saying is an emulsion, but there is a liquid fat and liquid water. There is a protein which is present, which is responsible for the stabilization. And if I Okay. remove that, you know, दूध फट गया. Okay. Got it? वो जो पनीर Okay. बन गया. So naturally it is present there. Otherwise क्या होगा? वो emulsion separate हो जाएगी दो layers में. तो ये यहाँ पर स्टोरी है कि ये they are going to be more solvated or hydrated. So there will be large amount of solvation here. That means the solvent molecules are going to surround these particles because they like them. And naturally, once they surround, what will happen? The particles are getting a shield that will stabilize. If different particles aggregate, what happens then? They fall down and become a suspension, mean coagulate, settling down in the solution. आपने देखा होगा कि lot of syrups which you buy, after some time you see they start settling down and then becomes Yes, sir. spoiled. Yes. खराब हो जाते हैं. जितने भी ये मेडिसिन्स होती हैं, you have to be careful to use them as early as possible. डेट लिखी होती है ना, Yes, sir. over a period of time क्या होगा, वो बस slowly and slowly stabilization खत्म हो गई, वो गिर जाएगा. और हम क्या करते हैं, पीने से पहले उनको अच्छी तरह शेक करते हैं. हिलाने से क्या होता है कि वो जो बने हुए हैं वो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, देखेंगे. तो कॉमन सेंस तो हर जगह यूज होगा. मतलब मुझे सोचना पड़ेगा हर चीज के लिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ. यही साइंस है और कुछ भी नहीं है. मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सोचूंगा तो सही. ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा. दिमाग को सोचना पड़ेगा. बिना सोचे मैं याद करूंगा रट्टेबाजी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा.
इतनी लाखों डेफिनेशंस केमिस्ट्री में कैसे याद कर लूँगा बताओ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें समझ लें, समझने के लिए हमें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तो हमें कह रहे हैं हाँ हमें इसके अंदर कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट तो होगा तब बचेगा ये, नहीं तो ये कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। एंड इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ दिस? एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी मैंने रेड मार्क लगा दिया। देखो कई बार वो एग्जाम में ये पूछता है व्हाट आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कोलाइड्स। हेडिंग में ये नहीं है एनसीईआरटी में, समझ गए? तो फिर Yes, आप sir. ढूंढते रहोगे कि ये कौन से कोलाइड्स हैं। सो वी हैव टू बी पे अटेंशन टू एवरी वर्ड। अभी तक तुम्हें समझ आई Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं? तुम साइंटिस्ट बनने जा रही हो, डॉक्टर बनने जा रही हो, जो भी बनने जा रही हो, अरे तुमने अटेंशन पे करनी है हर चीज पे। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू आई न्यू नथिंग। हमारे को कोई समझाने वाला नहीं था। नोबडी टोल्ड अस द बेसिक्स ऑफ लाइफ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तभी बताता हूँ आपको। तो वो सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन सुना है तुमने कभी? Yes, sir. Yes, sir. Has he done any course or any scientific things? No. Then how he is talking things bigger than scientists? आप समझ रहे हो? Yes, sir. When you see people and listen to them, you will be surprised that ना तो उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री है, ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो ये इंडियंस हैं। अब ये डॉक्टरों के साथ इंटरव्यू में आता है, यूएनओ में आता है, सब जगह आता है। ये नॉलेज कहाँ से लाता है? तो वो बेसिक है ना, सब चीजें लाइफ में बेसिक हैं। वो समझ, बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट स्टूडेंट्स वी हैव टू पे अटेंशन टू द थिंग्स एंड वी हैव टू पुट डेप्थ, गो डीपर डीपर एंड डीपर। समझे? Yes, sir. ऊपर तैरना आसान है, जब समुद्र के अंदर जाओगे तो आपको काफी डिफिकल्टीज आएंगी। आएंगी कि नहीं? Yes, sir. जो डाइवर्स होते हैं, जो डीप जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन ये बताओ कि डीप डाइविंग के बाद क्या मिलेगा? डीप डाइविंग के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? बताओ। पर्ल्स का होते हैं? Pearls. Deep पर्ल्स down in तो the sea. डीप डाउन द सी होते हैं, ऊपर नहीं होते। यही स्टोरी है लाइफ की भी। मैं उनको काफी स्टडी करता हूँ ऐसे लोगों को, और आई हैट्स ऑफ टू दीस पीपल, आई बो टू दीस पीपल दैट दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। तो जो बेसिक चीजें होती है ना वो उनके पास हैं। सो दे कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक एनीवेयर, दे डोंट हैव टू रीड बुक्स फॉर दैट। वो इसलिए उनको वर्ल्ड के लोग सुनते हैं। तो हमने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड स्टूडेंट। दे आर इजी टू फॉर्म बिकॉज दे आर हाईली सॉल्वेटेड, दे आर मोर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बट इनकी स्टेबिलिटी लेस है। दैट इज व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, देन वी कॉल देम एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स। ठीक है? यहां तक Okay, समझ sir. में आई स्टोरी? Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे बीच में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन उसने ये दे दिया पेपर में, गिव डिफरेंसेस बिटवीन। अब एग्जामिनर की मर्जी है। डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। अब इनमें डिफरेंस पूछ लिया। So we are giving you few important points about that also, so that questions are given, we can answer them, but we have already defined them. Dispersed phase and affinity for dispersion medium, that's lyophilic colloid, that they can be readily made by mixing, and they are more stable in nature, so difficult to coagulate. They are also called intrinsic colloids. Examples also we are given. And lyophobic, we are saying there is a less affinity between the dispersed phase or no affinity between the two, therefore they are not stable students, and they can be coagulated easily, and therefore preparation is difficult, and they are unstable, will require stabilizing agents. They are called extrinsic colloids. Examples जो metals होते हैं, gold salts बनेंगे, और ये बनेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स
we are going to learn about that more in the coming lectures. They are the examples of the two students. डिफरेंसेस के बारे में काफी डिस्कशन हुआ है तुम्हारा और मेरा यहाँ पर, बेसिकली वही पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फिर लिखे हैं, देखो रिवर्सिबल, लायोफिलिक रिवर्सिबल इसलिए है कि स्टार सॉल्यूशन है। देखो आप स्टार सॉल्यूशन में यू इवापोरेट द वाटर, व्हाट विल बी लेफ्ट, स्टार्च, Starch. फिर वाटर डाल दो और शेक कर दो तो फिर बन जाएगा, Again. बिकॉज Yes. दे आर इजी टू प्रिपेयर। और ये रिवर्सिबल है क्योंकि वो अनस्टेबल है, एक बार प्रेसिपिटेट बन जाएगी तो फिर क्या करोगे, कोएगुलेट हो जाएगा। ये हाईली सॉल्वेटेड है और इसमें सॉल्वेशन नहीं है क्योंकि फोबिक है, फोबिया है, और सेल्फ स्टेबलाइज होता है क्योंकि वाटर की शीट्स और सराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, वो लेयर फॉर्म कर लेते हैं अराउंड इट, और ये इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए। आपके घर में भी कहीं स्टेबलाइजर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहीं हम यूज करते हैं, उसके स्टेबलाइजर लगा लो जी, एसी है तो स्टेबलाइजर लगवा लो जी, रेफ्रिजरेटर है तो करें जी उसके ऊपर स्टेबलाइजर रखा हुआ आपने, वो क्या काम करता है, वाई यू नीड दैट। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को स्टेबलाइज करता हाँ, है। तो वोल्टेज अगर बहुत हाई और लो हो जाएगी तो अप्लायंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यस सर। तो बेसिक चीजें तो वही है, स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है तो उसको स्टेबल करने के लिए समथिंग हैव टू बी डन, स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया। और ज्यादातर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसलिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे स्टार्च वगैरह उनमें बड़े अच्छे OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये बड़े पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स OH हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह के ऑक्सीजन वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो और भी अच्छा। प्रोटीन्स हैं तो उसमें क्या है, NH2 वाले ग्रुप होते हैं। अब दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जैसे मेटल वगैरह होते हैं, मेटल्स हैं तो उनके पास कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, मेटल के पार्टिकल्स हैं, तो ये स्टेबल हैं, ये अनस्टेबल हैं, और जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो कोएगुलेट हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे स्टूडेंट। तो इनको छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करोगे तो वो एकदम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करना पड़ेगा, तो ये कोएगुलेट होते हैं, तो ये कोएगुलेट होते हैं, वाई वो बाद में हम स्टडी करेंगे इसको। इसमें आपने अगर हीट कर दिया या छोटा मोटा स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो वो फिर क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट रह गया क्या हमें? नो सर। इसमें क्वेश्चन आना है पेपर में, मैं बता रहा हूँ, वन क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है, ये एक डेफिनेट क्वेश्चन होता है इस पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। अब आगे चलते हैं, फिर ये तो हो गया, ये भी हो गया, हमें एग्जांपल हमने बताए हैं इनमें क्या क्या है। इसकी जो सरफेस टेंशन होती है मीडियम की वो सेम होती है, विस्कोसिटी सेम एज दैट ऑफ द मीडियम, इरिवर्सिबल, और एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, कोएगुलेट होगा तब, हाइड्रेशन नहीं होती। और एग्जांपल तुम्हें बताइए हैं, गोल्ड का है, सिल्वर सॉल्ट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स जो होते हैं, और लायोफिलिक में लोअर हो जाती है मीडियम से सरफेस टेंशन, लोअर विस्कोसिटी, हायर हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन होगी, हाइड्रेशन अच्छी है, गम, जेलेटिन, स्टार्च, ये जो गम जेलेटिन स्टार्च है, सब ग्लूज वगैरह जो यूज करते हो, गम बहुत ज्यादा यूज करते हो ये तुम, गम जेलेटिन और स्टार्च सॉल्यूशंस वगैरह। यस सर। तो यहाँ पे तो मेनली मेटल्स दिखाए हैं मैंने, जैसे गोल्ड का सॉल्व बनाओगे, सिल्वर का बनाओगे, इस तरह से जो मेटेलिक सॉल्व्स होते हैं ये ज्यादातर उसमें आएगी कैटेगरी में। ये ऑलरेडी समझ में आ गया, हम वी ऑलरेडी डिस्कस स्टूडेंट्स। अब देखो कि यहाँ पर हमने जो डिस्कशन की थी वो इंटरेक्शन के बेस पे की थी बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। किस क्या तुमने बोला, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट हिटिंग, बस इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं। अब और भी क्लासिफिकेशंस आर देयर जो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं? अब वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मैं कह रहा हूं हम सही, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के, यस सर। डिस्पर्स्ड फेज।
व्हाट यू सेड कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम ए कोलाइड? क्या कंडीशन है कि कोलाइड बन जाएगा कोई भी सॉल्यूशन? तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की क्या कंडीशन है? ये पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के कि ये कोलाइड बन जाएंगे। व्हाट इज द कंडीशन? टेल मी। सोचना है। व्हाट इज द कंडीशन स्टूडेंट दैट द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विल बिकम कोलाइड? सर उनके डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए कोलॉइडल रेंज में। साइज? तुमने कहा कि अगर इनका साइज, इफ द साइज कम्स इन दिस रेंज तो वो कोलाइडल बन जाएंगे। यस सर। अब देखो कि हो सकता है कि व्हेन आई मिक्स समथिंग द साइज इज वेरी स्मॉल, लेकिन वो बना सकते हैं साइज बड़ा। तो इस तरह से भी कोलाइड हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन दी गई है। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ वो क्या लिखा है मैंने, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखो मैं कह रहा हूँ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कैसे बनते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर? मल्टी मॉलिक्यूलर याद करने की बात नहीं है, समझने की बात है। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? मेनी मॉलिक्यूल्स, आइटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में एग्रीगेट फॉर्म करेंगे। एग्रीगेट कर जाएंगे। अरे छोटे छोटे, देयर वर स्मॉल पार्टिकल्स बहुत सारे थे। कितने थे? वेरी स्मॉल, फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल। ये मेरे पास क्या थे? फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, इनका साइज क्या था? लेस देन 1 नैनोमीटर। अभी तो ये कोलाइड नहीं है। इफ दे एग्रीगेट, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, यहीं से बनाएंगे हम। अगर ये एग्रीगेट कर जाए, ठीक है, ओके। जैसे मोर देन 100 और मोर देन 1000 एग्रीगेट कर जाए, फिर क्या होगा? तो इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो कोलॉइड बन तो जाएंगे। ये एग्रीगेट कर गए तो ये बड़े साइज में आ गए। और ये जो साइज चाहिए था तुम्हें 1 to 1000 तो ये क्या बन जाएगा? कोलाइड। तो Yes, sir. इसमें क्या हुआ है? मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब हो गया मैनी मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट फॉर्म करके उन्होंने बना लिया। तो डेफिनेशन याद करना कि अब इसमें क्या रह गया याद करना, बस जो हमने कहा उसी को लिखना। क्या लिखा मैंने? बेसिकली एग्रीगेट विल बी फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स, देन इट विल बी कॉल्ड मल्टीपल मल्टी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और एग्जांपल्स जरूरी होते हैं, समटाइम्स दे विल आस्क यू। आपको पेपर में दे दिया गोल्ड सॉल्व, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज दिस। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? देखो जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड सॉल्व जो बनता है, गोल्ड का जो सॉल्व बनता है वो गोल्ड हम बताएंगे, वी विल शो यू द मेथड आल्सो बाय व्हिच इट इज प्रिपेयर्ड। तो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो एग्रीगेट कर जाते हैं, वो दिखाएंगे, कंडेंस करेंगे, हम उनको कंडेंस करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक आर्क अप्लाई करेंगे, देन वी विल कंडेंस देम। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे एंड देन दे विल बिकम कोलाइडल इन नेचर। इसी तरह सल्फर के जो सॉल्ट्स होते हैं, सल्फर का एटॉमिसिटी कितना है? 8। एसिड लिखते हो ना? ऐसे यस अरे सर। क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी पे क्वेश्चन आ गया। ले, अब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, मैं जब बात करता हूँ तो सारी केमिस्ट्री आ जाती है उसमें। मैंने ये डिस्कसिंग है, सारी केमिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पर। पता नहीं कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा था, वो भी आ गया। तो एटॉमिसिटी इसकी 8 होती है। ये मॉलिक्यूल्स, ये जो है सल्फर जो है, एक सल्फर नहीं है, 8 इकट्ठे हैं। तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे, तो उनका साइज कितना आ जाता है? अराउंड 1000 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। कितने? 1000 1000। इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर ये इस रेंज में आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसमें कोई डाउट रह गया हमें? नो सर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आई एम सेइंग स्टूडेंट्स मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब बताओ कि मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? The मैंने लिख दिया। colloids which have large molecules. तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, ठीक है। Yes sir. तो केमिस्ट्री में क्या ऐसे बिग मॉलिक्यूल होते हैं? टेल मी कोई नेचुरल बिग मॉलिक्यूल।
यस सर, कौन जो सा है? जैसे जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे स्टार्च होता है या प्रोटीन्स होते हैं। स्टार्च तो, स्टार्च तो मोनोमर होता है सर। प्रोटीन्स जो होते हैं, दे जो आर। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते यस हैं। सर। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। देखो ये सब चीजें समझनी है, कॉमन सेंस दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना, याद रट्टेबाजी नहीं है कुछ भी। अब बायोमोलिक्यूल्स तुमने पढ़े थे, तुमने कहा प्रोटीन से, अच्छा जी चलो प्रोटीन लिख देता हूँ। स्टार्च लिखी है, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्च में, तो हमारे कोर्स में भी आएगा, बहुत सारे हैं। यस सर। तो वो सो मैनी, प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स, कितने सारे, यस बहुत सर, सारे हैं तुम कह रहे। बहुत सारे। तो वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर मास होता है। यस सर। तो लार्ज मॉलिक्यूल वाले हैं ये सारे। सेलुलोज तुमने देखा, इनमें बहुत सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, यस सर। बहुत सारे हैं। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास कितना बड़ा है, लार्ज है, यस और नो। यस सर। तो ये जब मॉलिक्यूल का साइज ही बड़ा है, तो वो क्या करेंगे, जब व्हेन यू विल प्रिपेयर देम इन डिस्पर्शन मीडियम में डालोगे, क्या बनेगा वो, तो ये बन जाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इनको क्या बोला मैंने, मैक्रोमोलेक्यूलर देखो कोलाइड्स। यहाँ पे डिफरेंस आते हैं पेपर में, याद नहीं करना, समझना है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन का मुश्किल लग रही है। इन अ सूटेबल सॉल्वेंट इन विच साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल मे बी इन द कोलाइडल रेंज। साइज तो तुम्हारे को मैंने, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड साइज 1 to 1000। 1000। चलो यहाँ पे स्टोरी है। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी समटाइम्स क्वेश्चंस आर गिवन इन कॉम्पिटिशंस, यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब ये काफी स्टेबल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही बड़ा है, तो इसमें ये कहाँ जाएगा फिर। तो नेचुरल वाले ये नेचुरल है, वो कोई सीधा ये पूछ लेगा नेचुरल, और दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक कौन से होते हैं ज्यादातर, देखो कौन से तुम, विच आर यू आर प्रिपेयरिंग इन द लैब स्टूडेंट्स। सर जैसे पॉलीथीन जो होता है। अरे पॉलीमर्स होते हैं ना फिर वो, यस सर, ज्यादातर पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं स्टूडेंट्स, यू आर मेकिंग एंड सिंथेसाइजिंग इन लैब स्टूडेंट, तो वो सिंथेटिक हो गए, ये नेचुरल हो गए। तो क्वेश्चन में नेचुरल या सिंथेटिक भी पूछ सकता है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। समझ में आ गई स्टोरी। यस सर। अब देखो कि तुमने कह दिया पॉलीथीन, ये पॉलीमर है, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब सिंथेटिक रबड़ वगैरह भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये सब कौन से हैं, मैक्रोमोलेक्यूलर कोलॉइड्स। एनी डाउट हियर वी हैव। नो सर। ठीक है, ओके, ये भी आ गया समझ। हमें समझना है, बस कुछ भी नहीं करना, रट्टेबाजी वगैरह कुछ नहीं है, जब समझ में आ गया तो हो गया बस। क्वेश्चन आना है, अब दोबारा थोड़ी भूलेंगे हम एग्जाम में, बुक पढ़ने की नीड नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस, फिर वो रिपीटेडली आस्क करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या कह रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइड स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड एसोसिएटेड कोलाइड्स। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मीजल्स का। सो टेल मी व्हाट इज अ मीजल, व्हाट मीजल क्या होता है स्टूडेंट, यू नो एनीथिंग अबाउट मीजल्स, यस और सर। व्हाट इज अ मीजल। सर, measles are during cleaning, when we clean the clothes with soap, measles are formed. Sir, it's they are actually aggregates of colloidal particles. कोई बात नहीं, तुम वट एवर यू आर थिंकिंग, हम उसमें यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, आई मीन यू नो समथिंग, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, क्योंकि
जब मीजल बनते हैं तभी वो कोलाइड बनते हैं, अदरवाइज दे वर ओनली ट्रू Okay. सॉल्यूशन। ऐसी मतलब समझने की अब बात, कोई बात नहीं। व्हाट आई वांटेड यू शुड मेक एन अटेम्प्ट। देखो कि अब समझते हैं, वी लाइक टू सी व्हाट इज द स्टोरी हियर। अब मीजल्स का एक्चुअल मीनिंग है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव कलेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए क्लस्टर, एक क्लस्टर बनेगा। Okay. ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर बनेगा, कितने 100 या 100 से ज्यादा। वो क्या करेंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे बनेगा, अब ये देखना है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, इज देयर एनी कंडीशन और एनीथिंग कैन बी फॉर्म्ड, नो, द क्वेश्चन इज दिस नाउ। तो कुछ व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, students which had low concentrations। important point है, सब देख लेना, समझ लेना। there will be a question in this in exam। at low concentration students, they behave as solutions, true solution, or they are just like strong electrolytes, they are strong electrolytes। electrolytes का क्या मतलब है, they have ions in the solution, Yes, sir. आयन है उनके पास लो कंसंट्रेशन पे, मतलब दे आर बिहेविंग एज ए ट्रू सॉल्यूशन। क्या है उनके पास, सॉल्यूशन है वो, True solution. अभी कुछ भी नहीं है, कोलाइड नहीं बना। अब क्या किया मैंने, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब मैं लिख रहा हूं हाई कंसंट्रेशन स्टूडेंट, ठीक है, मुझे सोचना है बस, और कुछ नहीं करना। कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो वो क्या करते हैं, when the concentration increases, they start, what they form, they aggregate, the particles aggregate, Okay. मतलब एसोसिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं, दे आर एसोसिएटिंग, इसीलिए इसका नाम दिया गया ना एसोसिएटेड कोलाइड्स। और जब ये एग्रीगेट, मतलब मोर देन अबाउट 100 से ज्यादा एग्रीगेट आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, when they will aggregate more than 100, तो वो क्या बनता है, उसी को बोलते हैं मीजल्स। Okay. क्या बोलते हैं, मीजल्स बन गए। Measles. मोर देन 100 कलेक्ट हो गए, क्लस्टर बन गया, क्लस्टर बन गया स्टूडेंट, तो व्हाट, उसको क्या बोलेंगे हम, मीजल। और जब मीजल बनते हैं तो वही कोलाइड्स होते हैं। अब कोलाइड बन गया, उसका साइज पहले छोटा था, अब 100 का क्लस्टर इकट्ठा हो गया, तो एसोसिएट होने के बाद क्या बन गया, कोलाइड। तभी मैंने लिखा ना एसोसिएटेड कोलाइड, और ब्रैकेट में मैं डायमेंसिंग मीजल। तो ये मीजल जो बना वो कोलाइड है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, Okay. Colloidal solution. तो अभी कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू शो यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस। लेकिन यहां से हमने डेफिनेशन किसकी बनाई है, मीजल्स की। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सी कंसंट्रेशन है जहां पे ये बनेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन दो आने वाले हैं। एक तो पहला मैं बता रहा हूं, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, सीएमसी। there will be minimum critical measle concentration is required, then only measles will be formed. If this concentration is not there, the measle will not be formed. Okay. Number 1 point मैंने क्या बताई है, कंडीशंस बता रहा हूं, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Measles. ठीक है, Yes, sir. नोट कर रहे हैं हम। Yes, sir. सेकंड है क्राफ्ट टेम्परेचर। स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, फिर आ सकते हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर स्टूडेंट्स, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी के से। स्टूडेंट, उधर क्रिटिकल टेम्परेचर सुना था यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज स्टूडेंट्स वर थिंकिंग
वो उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दी थी, जिसको वाज गिवन क्राफ्ट टेम्परेचर। वो क्रिटिकल टेम्परेचर, थिंकिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे गैसें लिक्विफाई हो रही थी, समझे? यस सर। वो इसी टाइप का लग रहा था, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, वो गैस की बात हो रही थी। तो ये के लिखा मैंने, क्राफ्ट टेम्परेचर है, तो वो कह रहा मिनिमम टेम्परेचर शुड बी क्राफ्ट टेम्परेचर और अबव देन दैट। तो जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टी के होगा और कंसंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन सीएमसी होगी, देन ओनली मीजल्स विल बी फाउंड, ओके देन ओनली मीजल्स विल बी फाउंड। और जो कौन से सब्सटेंसेस रह गए, आप थर्ड बताने, सब्सटेंसेस कौन से, देखो ये जो सोप्स होते हैं, सोप सॉल्यूशंस, एग्जांपल दे रहे हैं अब हम, ठीक है, एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप हर चीज। सोप सॉल्यूशंस, सोप्स क्या होते हैं, मैंने सोप लिख दिया, तुम पहले कोई सोप क्या होते हैं बताओ, फिर तुम अब सोप क्या होते हैं, रोज तुम यूज करती हो, कपड़े धोती हो। सर सोप होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अच्छा, तो तुमने ये कहा सर इसको ऐसे लिखो, आर सी सी डबल ओ ओ ओ एन ए ओ प्लस, एन ए प्लस। आर वैल्यू बहुत लार्ज है, लॉन्ग, यस सर। मतलब ये फैटी एसिड्स के वो है, फैटी एसिड के साल्ट्स हैं, ये कह रहे हो तुम? यस सर। कोई भी चीज लिखता हूँ उसकी मतलब तो समझ लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर मैंने कोई वर्ड लिख दिया, आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। जब मुझे ये नहीं पता क्या, ऐसे ही रट्टेबाजी करनी नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो ये सोप्स होते हैं। अब ये इनके अंदर देख रहे हो क्या है, एक तो आर ग्रुप है और ये ग्रुप है, दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हुए हैं। यस सर। तो आर ग्रुप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द आर ग्रुप स्टूडेंट्स? भाई दो ग्रुप लगे हुए, तुमने कहा ये लो, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये वाला ग्रुप कैसा होता आर है? आर तो हाइड्रोकार्बन होता है, तो नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन होता है, नॉन पोलर होता है। ये तो पोलर है, माइनस प्लस लगे हुए हैं। यस सर। यस तो सर। अभी अपने बिहेवियर शो करेगा, इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा इससे, समझ गए? ओके ओके। अरे ये प्रॉपर्टी चेंज कर देगा ना इसकी, इसका बिहेवियर डिफरेंट है। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये चीजें फाइंड की थी ना, क्राफ्ट टेम्परेचर और मीजल कंसंट्रेशन सोप सॉल्यूशंस के लिए। तो वैल्यू कितनी आई थी ये भी पूछ लिया था उसने पेपर में, इसकी वैल्यू कितनी आती है, उसने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन फॉर सोप सॉल्यूशंस, कितनी है, 10 - 3 टू 10 - 4 मोलर बता रहा हूँ। ओके। क्या लिखी मैंने, 10 - 3 टू 10 - 4 मोलर। ये चीजें नोट करनी है स्टूडेंट्स, जो भी हम लिख रहे हैं। तुम अपने लाल पेन तुम्हारे पास हैं, कितने कलर के पेन रखे हैं? सर एक रेड है, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक। हाँ, तो जितने तुम्हारे पास कलर है उनको यूज कर लो। ओके सर। जो तुम अपने, यू मस्ट राइट विद योर हैंड्स, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लाइफ बिकॉज यू विल नॉट फॉरगेट। नोट करते जाओ करते जाओ। पेपर नोटबुक जरूर यूज करनी है, कुछ भी कोई भी चीज स्टडी करते हो, पेपर नोटबुक नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको नोट कर लो विद कलर्ड पेन्स, और वो कलरफुल बना दो, देखने में भी अच्छे लगे। तो यहाँ पे हमने ये बताया आपको क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन, स्टूडेंट ग्राफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, आ चुके मतलब, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। ये लोग क्रिटिकल मीजल, ये सीएमसी और ये टीके के ऊपर निशान लगे हुए हैं रेड, कंसंट्रेशन भी मैंने बता दी कितनी है। कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, बट आई कैन नॉट हेल्प, एग्जामिनर पता नहीं क्या पूछेगा। तो सॉप सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया, हमें पता लग गया। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कशन हो रही है मैकेनिज्म ऑफ द मीजल फॉर्मेशन की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मीजल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म पूछ लिया उसने मीजल का कैसे बना है। तो अभी तक जो हमारी स्टोरी थी, तुमने कहा कि जो सोप सॉल्यूशन है, तुमने कहा सर ऐसे दिख रहा है, CH3CH2 16 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस
तो इसमें तो बहुत सारे कार्बन्स हैं, बहुत सारी लंबी चेन है सर। Yes, sir. अब ये जब डिसोशिएट होगा तो ये सोडियम आयन तो सोल्यूशन में चले जाएंगे एंड दिस विल बी देयर। तो इसको तुमने ऐसे लिख सकते हो, बहुत लंबी चेन बन रही है, बहुत लंबी चेन बन रही है स्टूडेंट ऐसे, और कुछ ऐसा हेड सा मैंने दिखा दिया। चलो, तो एक टेल दिख रही है और ये हेड है, ठीक है। ये पोलर है और Yes, ये sir. नॉन पोलर है। Non-polar है। इसको हाइड्रोफोबिक ग्रुप कहा जाता है स्टूडेंट, हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हमने दिखाया ये प्लस माइनस लगे हुए हैं, देखो माइनस चार्ज है ऐसे। तो अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये है। आपने कंसंट्रेशन रखी कम तो ये एज अ ट्रू सोल्यूशन है, और जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी 10-3 टू 10-4 तुम कह रहे हो क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर ये क्या करने शुरू हो जाएंगे, 100 से ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो दे विल फॉर्म ए क्लस्टर। क्या बनाएंगे, ये क्लस्टर बनाते हैं। तो हमने कहा Cluster. अच्छा सर ऐसा Yes, sir. हो रहा है, देखो ये है, और यहाँ पर CO माइनस है सर, ऐसे ये इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सर बहुत सारे आ जाएंगे, ये सारे। सो यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं ऐसे 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 ऐसे। यहाँ दीज आर पोलर ग्रुप्स, ये सब पोलर हैं, ठीक है। Yes, sir. जो 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तो अब ये क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, मीजल। क्या बन गया, Measle. मीजल बन गया स्टूडेंट्स। Yes, sir. अब इसके बाद दो टाइप के ग्रुप हैं, ये वाले नॉन पोलर और पोलर। आपकी जो डल्ट होती है स्टूडेंट्स, जो डल्ट होती है या कुछ भी वो ऑयल वायल होता है, ठीक है। तो सोप ने क्या किया कि मीजल फॉर्म कर दिया। तो मीजल का यूज क्या है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज द यूज ऑफ मीजल। तो मीजल का क्या यूज होता है, बताओ, मीजल क्या काम करता है। सर इसका ये यूज, ऑयल और डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करता तो है ये क्लीन क्लोथ्स पे करने के से। काम आएगा, तुमने कहा इसे बोलते हैं क्लींसिंग एजेंट है। यस सर। आपके वट एवर योर क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग स्टूडेंट्स, देयर इज ए ऑयल एंड फैट विच आर डिपॉजिटेड, मतलब इनके ऊपर चिपक गई है, स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। डर्ट, डर्ट क्या होती है, ऑयल्स फैट्स ही होते हैं जो आप खाते हो, ये सब चीजें वट एवर यूर ईटिंग, उनमें क्या है, ऑयल्स और फैट्स होती हैं, वो आपके वहां चले जाती हैं। वो पोलर है या नॉन पोलर है, सर वो पोलर है। पोलर नहीं है वो, ऑयल कहाँ पोलर है। अच्छा ओके, ऑयल हाँ नॉन पोलर है। ओके ऑयल ओके। है, एक वाटर है एक ऑयल है, दो लेयर बनती है, तो ऑयल कहाँ पे पोलर है, ओके ओके। वाटर पोलर है। तो नॉन पोलर किस में जाएगा, ये जो नॉन पोलर होगा, ये सारी चीजें नॉन पोलर हैं, ये सब किस में चले जाएंगी, ये डर्ट जो सर होगी आपकी, ऑयल होगा, ये ऑयल है, इसके अंदर स्टिक कर जाएंगी। कहाँ चले जाएंगी, ऑयल में। स्टिक कर जाएंगे। ओके तो ये ऑयल के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। ओके सर। और ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इन सब पे नेगेटिव 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 है, तो इसलिए ये आपस में भी नहीं जुड़ सकते, दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन। समझ गए, ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे ही ओके रहेंगे जैसे ये है, एक मीजल की फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, मीजल। तो मीजल भी ओके स्टेबल होना चाहिए ना, स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड बिकॉज द चार्ज इज सेम, सो दे आर स्टेबल, अदरवाइज दे कैन कम टुगेदर, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर। तो ये एक तरीके से ओरिएंटेशन हो गई इनकी। इसे क्या बोला, ये आयनिक मीजल है। किस टाइप की है, आयनिक। आयोनिक मीजल। वाई, बिकॉज देयर इज एन, यू सी देयर इज आयन, आयनिक चार्ज ऑन इट। और यहाँ पे डर्ट थी, उसके अंदर ये चले गए। अब क्या होगा कि पानी आपने डाला तो वाटर किसके साथ जाएगा, इसके साथ, पोलर ग्रुप्स के साथ। यस सर। तो जैसे ही आपने वाटर डाला, वॉश किया, तो ये सब निकाल लेगा, खींच के ले जाएगा इसको। ये क्या, ऑयल फैट ही होती हैं। मैंने कहा जो ये जो ऑयल और फैट्स ही होती हैं आपके कपड़ों पे जो डस्ट होती है,
ये जो डर्ट होती है, तो ये सब की सब निकलती जाएंगी पानी से। तो वॉशिंग मशीन जब चलती है, तुमने देखा है ना, सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, बाद में वो फिर सब निकल जाता है, पानी ले जाता है सबको। Yes, sir. तो यहाँ पर सोप सोल्यूशन का क्लींजिंग एजेंट पता लगा, वी गॉट द मैकेनिज्म। यहाँ पे दिखाई भी है हमने पिक्चर, इस तरह से ये मीजल बन गया है, आयनिक मीजल है। और देखो वाटर में क्या हो रहा है कि ये देख रहे हो, पोलर वाले ग्रुप हैं, पोलर वाले ग्रुप हैं, पानी के साथ रहते हैं, और ऊपर ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स यू कैन सी। और ये बहुत जगह सोप के बजाय तुम डिटर्जेंट यूज करते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप? डिटर्जेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटर्जेंट स्टूडेंट। तो डिटर्जेंट्स जब यूज करते हो स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, यहाँ पे हमने उसका फार्मूला भी दिखा दिया। वो सल्फो SO4 माइनस Na+ दिखाया हमने। देखो यहाँ पे ये क्या है, पोलर ग्रुप SO4 है इसमें, वो डिटर्जेंट होते हैं। Okay. सल्फेट्स होते हैं, ये लॉरिल सल्फेट दिखाया हमने, सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला था वो ऊपर, ये सल्फेट्स हैं। मैकेनिज्म इज द सेम। मैकेनिज्म क्या है, दोनों का सेम है, किसका, सोप्स और डिटर्जेंट्स का। तो वो Detergent. सिर्फ Okay. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो, ये इनकी एक्शन, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस है, तुम्हें पता है। Mm-hmm. सोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हार्ड वाटर, Hard water. दे विल फॉर्म द स्कम, वो स्कम फॉर्म कर लेते हैं। उनमें क्या होते Yes, हैं, sir. कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वगैरह होते हैं। इसमें कोई डाउट रह गया? No, sir. अच्छा, ये समझ में आ गया। अब देखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ऊपर पूछेगा एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हाउ टू एक्सप्लेन द क्लींजिंग action of soap, student, has been asked many times. So आपने what answer you are giving, that there when at the critical measure concentration at the craft temperature, what happens is measles are formed, and measles have got hydrophobic group, and Hydrophilic group. hydrophobic group attaches with the dirt or dust, which is oil or fats। देख रहे हो, ये Mm-hmm. ये हमारी डस्ट है, फैट है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। तो आपने कहा कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये जो ऑयल और जो फैट है, ये जो डर्ट है, इसके अंदर जा रहे हैं। और ये पोलर ग्रुप्स हैं, वो वाटर के साथ चले जाएंगे। तो पोलर ग्रुप्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, CO- वाले, ये वाला ग्रुप पोलर वाला COO-, O minus. किसके साथ चले जाएंगे, वाटर के साथ Water के साथ. इंटरेक्ट करेंगे। तो वो पुल कर लेगा वाटर इनको, वाटर क्या करेगा, पुल कर लेगा सारी डर्टी सरफेस को। तो सोप हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे। इनको क्या बोलते हैं, सोप्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग। तो सोप्स ने क्या किया, एमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग। Washing. किसकी किया, ऑयल्स एंड फैट्स की। ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, उनको ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी क्लीनिंग होगी। Okay, sir. बताओ, ये 3 टाइप के भी हमने क्लास डिस्कस किए, इसमें कोई डाउट लगा तुम्हें? No, sir. Okay, then thank you very much. I thought you had interacted very nicely and given plenty of answers. And this was a good session that we were able to understand most of the things. And most of the questions were important, which have been discussed. They have been asked in the papers. We are expecting questions in the exam, whatever has been discussed, and we'll meet you in the next class. Good night. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.